Assalamu alaikum everyone. I am Tuba Tawfiq and you're watching Kashmir Observer. Finance Minister Ms. Nirmala Sitharaman announced the Union Budget 2022 at the beginning of this week. Now everybody doesn't seem too happy. The opposition has called out the apathy of the Union Budget towards the poor and the salaried class. As is obvious, the party in power, especially PM Modi, have stood behind the Union Budget and have gone on to call it people-friendly and progressive. Today on Kashmir Observer, we are going to analyze the budget for you to understand. Here from Kashmir, I am joined by economist Ejaz Ayub to see what really is going on behind the numbers. Thank you so much, EJ, for joining us for today's discussion. Let's just dive into the discussion right away. What do you think has the union budget been? Has it been promising or has it been underwhelming? From a policy point of view, there's a lot of status quoist nature of the budget. By that, I mean to say that sometimes you must have seen budgets are populist, wherein a lot of benefits are given to the common people, be it middle class or sometimes to the farmers or kabhi MSMEs ko hota hai. We say budget is a populist. उसमें ऐसी कोई चीज दिखी नहीं. Sometimes budget is growth oriented. जहाँ पे देखा जाता है कि maybe government tries to speed up demand, government tries to speed up particular sectors, maybe export or something, जहाँ पे एक particular focus होता है, एक बड़ा annual focus रहता है growth के towards. लेकिन यहाँ पे जो ये budget present हुआ है, इसमें status quoist जो है इसमें huge है, which means the government seems to be, which might not be correct or which can be correct, seems to be happy with whatever is happening with the economy in terms of recovery. So India's GST collections have been getting a bit better. Job creation has been a problem, but to some extent government seems to be happy with that also. तो उस हिसाब से इन्होंने ज्यादा छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की है. टैक्सेस में कोई छेड़खानी नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई छेड़खानी नहीं है. इसमें एक हाईलाइट जो दिखा है वो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंडियन बजट का है वो काफी ज्यादा इंक्रीज किया गया 35%, विच इज वेरी सब्सटेंशियल, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. बाकी जो एक्सपेक्टेशन थी, अभी जो इंडियन इकोनॉमी की हालत है इसमें सबसे बड़ा और प्राइम प्रॉब्लम अभी चल रहा है, दैट इज ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट विच इज एट इट्स 48 ईयर हाई. 2019 की रिपोर्ट तब से तो बदतर ही हो गया, बेहतर नहीं हुआ. से जो पॉलिसी डिसीजंस हुए अपार्ट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 35% हाइक, नथिंग हैज बीन डन. इंस्टेड कुछ ऐसी स्कीम्स थी जो जिसके बदौलत रूरल एरियाज में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट, जैसे एमजी नरेगा में एलोकेशन रिड्यूस की गई विच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट. फूड सब्सिडी रिड्यूस की गई विच इज बिकॉज वी आर स्टिल इन द पैंडेमिक, दैट शुड नॉट हैव बीन डन. Likewise, the subsidy on fertilizers, which supports a large portion of your farm-based jobs, उसमें कटौती की गई. That is again and again healthcare की अगर हम बात करें, which I am saying that we are still in the pandemic, and this pandemic is not something which happens after 10 years. It's one. Governments across the globe have been beefing up their healthcare budget. They have been investing a lot in creating capacities wherein they can support this kind of events. लेकिन unfortunately last year के बजट के मुकाबले में अगर हम इस साल का बजट देखें तो यूनियन बजट में in real terms means अगर हम इन्फ्लेशन को ऐड करें उस हिसाब से तो हेल्थ केयर का बजट रिड्यूस हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है. नॉमिनल टर्म्स में इंक्रीज हुआ है लेकिन रियल टर्म्स में इंक्रीज नहीं हुआ है. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. सो माई फर्स्ट जो डिसअपॉइंटमेंट था, रादर देन मिडिल क्लास का इनकम टैक्स स्लैब, ऑफ कोर्स देयर हैज बीन एन डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को लेके जो गवर्नमेंट ने बिल्कुल आंखें बंद करके एक 25 साल का विजन दिया, एक बहुत ही लंबा विजन दिया, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन, अनाउंसमेंट एंड डिलीवरी. तो इंटेंशन और अनाउंसमेंट से भरी पड़ी थी स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर की, लेकिन जब डिलीवरी की बात आती है, फॉर एग्जांपल Tuba, you must remember, you must have heard about 100 smart cities. We heard about 5 trillion economy. We heard about doubling of farmers' income, right? These were all announcements and intentions. Very important. Intentions सरकार की होनी चाहिए, announcement भी होनी चाहिए. लेकिन when it comes to delivery, there has been a very bad track record in the last 5, 7, 8 years. We have not seen such things happening. So similarly,
अभी अगर हम 25 साल की बात कर रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर शी टॉक्ड अबाउट अमृत युग और समथिंग नेक्स्ट 25 years for 100 years. So in terms of rhetoric and in terms of announcement and intention, it sounded very nice, but we have some immediate problems. Rather than focusing on a long-term vision and talking exclusively about that, we should also have our sight very much towards problems like unemployment, problems like inflation, which are eating away households' income and all. So उन चीजों को लेके disappointing रहा. And of course, middle class के बारे में भी हम बात करेंगे, वो उनकी क्या expectations थी और उनमें क्या problems रही. Think that the same status quoist approach has been replicated in J&K's budget. What have been some hits and misses there? See, J&K's budget in itself has not been announced yet, because whatever has been announced in the government of India's budget, that is a revenue support. For example, our budget is, let's say, 1 lakh crore. We have resources in terms of taxes and other incomes, let's say 70,000 crore. These are just numbers I'm just filling in. 30,000 crore का जो gap रहता है, we are kind of center supports it us in those things. It's not just J&K they are supporting a lot of states, northeastern states, even UP government, such a big state with huge population, they have revenue deficits. Bihar has a lot of. So this is one of the components that every year union government जो states के हैं उनकी revenue shortfalls को करती है. इसमें कुछ चीजें उन्होंने बोली है जो ब्रेकअप करके जो अभी तक हमें नजर आई, क्योंकि J&K का अभी अपना बजट खुल के नजर नहीं आया, वो मे बी इन अ फ्यू डेज आएगा. जो ये 35,000 करोड़ है, इसमें से डल एंड निगिन को लेके कुछ पैसे दिए गए हैं, एंड दे हैव आल्सो गिवन 500 करोड़ ऑफ फॉर योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसमें बहुत सारा रेवेन्यू गैप के लिए है, छोटी छोटी चीजें हैं. सो देयर इज सम नथिंग सब्सटेंशियल से मेरा मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल हमारे जो इकोनॉमी है, J&K की बात कर रहा हूँ, 2019 अगस्त से ही ये एक लॉकडाउन फेज में चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ का डिमांड पूरी तरह से किल हो गया. टूरिज्म में भी अभी थोड़ा बहुत रिकवर हो रहा है. एग्रीकल्चर में हमने बहुत बड़े चैलेंजेस देखे. फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो हमारी 8-9 हजार करोड़ की इंडस्ट्री एप्पल्स की है, इरानियन एप्पल्स ने कितनी तबाही मचाई. इसी तरीके से आपका जो ग्लोबल एक्सपोर्ट था इन टर्म्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड ऑल, वो 30-40% पे चल रहा है, जो उसका पीक था, बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्लो डाउन. इसी तरीके से आपकी रेमिटेंसेज आती थी बाहर से, वो कम हो गई. एंड देन आपका लोकल ट्रेड, जो एक आपका जो ट्रेडिंग सेक्टर है बहुत बड़ा है कश्मीर का. आफ्टर एग्रीकल्चर आपका ट्रेडिंग सेक्टर है जो बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है. ट्रेडिंग सेक्टर डिपेंड करता है मार्केट्स पे, और मार्केट जब खुले होंगे तभी ट्रांजैक्शन होगी. एंड दैट्स हाउ ट्रेडिंग सेक्टर क्रिएट्स वैल्यू इन द इकोनॉमी एंड इट क्रिएट्स जॉब्स. इसीलिए हमने देखा कि CMI की रिपोर्ट भी जब आई पिछले 5-6 महीनों से, J&K का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो काफी हाई है, मतलब 22-21, कल आया जनवरी का डेटा 15% पे अभी भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है. सो दिस इज बिकॉज हमारी इकोनॉमी को हालत खस्ता है. आपकी मैन्युफैक्चरिंग बैठी हुई है, दे आर नॉट एबल टू अपने लोन्स को वो EMI नहीं दे पा रहे हैं, दे आर एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स. सो हमें एक्सपेक्टेशन थी, या यहाँ की जो चेंबर ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे ट्रेड फेडरेशन, सबकी एक्सपेक्टेशन और डिमांड्स भी रिपीटेडली इन ओपन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू, दे मेट अ लॉट ऑफ बिग ऑफिसेस. They wanted some kind of rehabilitation package, which would also support their bank interests, which will support their GST and also. They have been repeatedly asking for such a package, and their demand is very genuine. It's not somebody kind of going out with an unrealistic thing, जिसको बड़ा demonize किया गया है कि आप क्यों मांगने जाते हैं. देखिए, ये जो सारी assets है स्टेट के, इसके जो कस्टोडियन होती है वो सरकार होती है. जब इस स्टेट में कोई बंदा काम करता है, बिजनेस करता है, वो टैक्सेस देता है, वो सेल्स टैक्स भरते हैं इन द फॉर्म ऑफ GST. आप कोई भी पर्टिकुलर परचेज करते हैं, सर्विस लेते हैं, आप GST देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं. तो ये सारा जब नॉर्मल हालात में सरकार के पास आती है आमदनी, और सरकार इसको यूज करती है फॉर द बेनिफिट, सपोजिटली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. लेकिन जब इन्हीं बिजनेसेस की हालत खराब होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है सरकार की, वो इनको बेल आउट करे, बिकॉज दे आर द कस्टोडियंस, राइट. लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन हमको दिख नहीं रही है उस लिहाज से जिस हिसाब से खसारा हुआ J&K का. क्योंकि जो लॉकडाउन था, दिस वाज नॉट इन द हैंड्स ऑफ पीपल, बिजनेसेस. ये इनका बिजनेस स्पेसिफिक रिस्क नहीं था, ये सिस्टमिक रिस्क था, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेसेस. वो पैंडेमिक हो, वो या 2019 का जो पॉलिटिकल लॉकडाउन हो. तो उस लिहाज में सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उन्होंने नहीं दी. और इस बजट में, लाइक लास्ट ईयर भी ये हमको रेवेन्यू ग्रांट आया पिछली बारी, उसमें भी कुछ नहीं था.
उसमें थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज के लिए रखा था उन्होंने, आई थिंक 1000 करोड़ और 800 करोड़, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर। इस बार देयर इज नो मेंशन ऑफ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई रिहैबिलिटेशन पैकेज नहीं, व्हिच हैज बीन वेरी डिसहार्टनिंग एंड लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ऑल्दो पीपल डोंट से इट ओपनली, trade bodies were expecting. Now they are pinning hopes on the state government, means UT government. UT government will come up with its own budget with the money that is already earmarked for us, like 35,000 crore, including that money. We can only hope that maybe UT government will come up with some kind of package which will rehabilitate businesses and households. Or Tuba, is one important thing which is very essential for J&K कि यहाँ की poverty बढ़ रही है. यहाँ पे सर्वे नहीं हो रहे हैं, बट जो एनेक्डोटल एविडेंस है या जो आपका अपरेंटली दिख रहा है इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स से, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोग गुर्बत में जा रहे हैं. तो गुर्बत में जब जाते हैं, देयर इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सरकार का रहता है, सोशल सिक्योरिटी, जिसको वेलफेयर नेट बोलते हैं, जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें फॉर एग्जांपल कभी आपने सुना होगा विडोज को फंड मिलता था, स्कॉलरशिप्स मिलती थी, या गरीब लोगों को मुआवजा मिलता था, या राशन में सब्सिडाइज्ड मिलता था. तो उन चीजों की कश्मीर और जम्मू दोनों जगह बहुत ज्यादा जरूरत है. तो जो बजट आने वाला होगा, वी होप नॉट जस्ट बिजनेसेस बट ऑल्सो बिलो पॉवर्टी लाइन जो हाउस होल्ड्स है, उनके लिए जो सोशल सिक्योरिटी नेट होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, that has to be increased, and we hope that something of that sort is coming up in our UT budget. Earlier on, when we were talking about the highlights and the takeaways from the union budget, you talked about how the middle class seems to have been largely ignored. Do you have any explanation for that, and how have you assessed that the middle class have taken a hit in the union budget? By middle class, there are 3-4 categories of middle class. Salaried people में भी बहुत कम होते हैं, जिनके हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, उनकी परसेंटेज लाइक जो इनकम टैक्स पे करते हैं, इंडिया में शायद 5-6% लोग की इनकम टैक्स देते हैं. इसके अलावा लेकिन मिडिल क्लास में देयर इज एन इनकम ड्रॉप. देयर वाज एन ऑक्सफैम रिपोर्ट रिसेंटली, जहाँ पे देखा गया कि जो मैं सभी कैटेगरीज की बात करूंगा, जो हमारे टॉप इंडिया के जो टॉप 20 रिचेस्ट पीपल है, उनकी इनकम पिछले 5 साल में इंक्रीज बाय 40%, 39-40% इंक्रीज हो गई, रिचेस्ट 20%. लेकिन जो बॉटम 20% है, उनकी 53% डिप हो गई. मीन्स गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो रहा है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो रहा है. और जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी इनकम इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग, इट हैज गॉन डाउन बाय 7-8%. तो मिडिल क्लास की इनकम, एक तो जॉब्स जा रहे हैं, दैट इज वन एस्पेक्ट, लेकिन जिनके पास जॉब्स है, उनकी भी इनकम नीचे जा रही है, बहुत ज्यादा जा रही है. अब सरकार क्या करेगी, क्योंकि ये जो मिडिल क्लास है, दिस इज द मीट ऑफ द इलेक्टोरल काइंड ऑफ अ थिंग. ये डिमांड के लिए भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जो कंजप्शन होती है, मीन्स 2 व्हीलर्स की, आपका 4 व्हीलर, छोटे 4 व्हीलर्स की, या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, एपरल की, फूड आइटम्स की, दिस इज लाइक द मीट ऑफ योर डिमांड. ये वाले लोग इलेक्टोरली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वोट्स भी बहुत ज्यादा देते हैं इलेक्टोरली, ये होते हैं. इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम जब टैक्स ब्रेक्स हुए थे, इट वाज इन 2019 फरवरी जब दिया गया था. व्हाई? बिकॉज इट वाज एन इलेक्शन ईयर. सो अभी अगर वैसे सोचे, इलेक्टोरली सोचे, बिकॉज दीज पॉपुलिस्ट डिसीजंस आर ऑलवेज डन राइट बिफोर इलेक्शंस. इसमें रीसेंसी इफेक्ट रहता है. अगर हम अभी इलेक्शन में 1-2 साल 3 साल है, तो अभी अगर देंगे, लोग तब तक भूल जाएंगे. तो सरकार वो वाला रिस्क उठाना चाहती है कि अभी नहीं देंगे, which I'm sure 2024 there's an election year and you will have another tax breaks there only. लेकिन इसके साथ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सरकार ने बहुत बड़े टैक्स ब्रेक्स 2019 सितंबर में दिए थे कॉर्पोरेट्स को, कॉर्पोरेट टैक्स, which is to some extent kind of जो हमको इसमें दिखा अभी, जो मैंने कहा 20% पीपल टॉप रिचेस, उनकी 40% इंक्रीज हो गई है वेल्थ, लेकिन जो गरीब है उनकी 53% डिप हो गई है. तो ये टैक्स ब्रेक्स जो उनको मिल रहे हैं, दे आर समवट नॉट काइंड ऑफ जस्टिफाइड टू दीज कॉर्पोरेट्स व्हिच हैव बिग इनकम्स. तो सुपर रिच को टैक्स नहीं किया जा रहा है, मिडिल क्लास की जो किया जा रहा है, लेकिन उनको टैक्स ब्रेक्स काफी मिली. मिडिल क्लास को कोई टैक्स इंसेंटिव नहीं दिया गया, और जो गरीब है उसको इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट मार रही है. तो जिसकी वजह से इस कंट्री की जो स्ट्रक्चर है बड़ी अनहेल्दी हो रही है. मीन्स more wealth is concentrated with few number of people and majority of people are living in misery. So that is a very unhealthy ratio for the country. So ये बजट में सोचा था मे बी आपके जो टैक्स पॉलिसी होगी, डायरेक्ट टैक्स पॉलिसी में भी कॉर्पोरेट्स को टैक्स लगाया जाए, जिसकी वजह से सरकार को बहुत ज्यादा इनकम आ सकती है, और वो पैसे वो
फॉर एग्जाम्पल फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, या फॉर एग्जाम्पल MG नरेगा में यूज करेगी, जहां से लोअर तबके को रोजगार आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और जो रीजन इसका है, व्हिच आई एम सेइंग अगेन, द पॉपुलिस्ट डिसीजंस हैव बीन रिजर्व्ड फॉर इलेक्शन ईयर, so I don't see anything happening anytime soon for these tax breaks. What would you say about the job scenario right now? And has the budget really addressed the job crisis at all? And has it done anything to sort of create a scope for job creation? See, when this dispensation, which is ruling the country, came into power, they said they will provide 2 crore jobs every year. So that was the slogan. And now the latest speech, it says 12 lakhs. So it has come down drastically, meeting with the reality. अभी अगर हम गवर्नमेंट की ही वेबसाइट देखें, लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट, उसमें उन्होंने मेंशन किया है, विच इज स्टिल वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट, काफी ज्यादा होगा, 1.3 करोड़ people are looking for jobs and they don't have jobs इस point in time, and there are only 2 lakh jobs available in the system. So आपने सप्लाई और डिमांड देखी, जॉब एक 1.3 करोड़ people are looking for jobs और 2 लाख है jobs. So मतलब 1.1 people will remain, 1.1 करोड़ people. तो आपने रिसेंटली कुछ इंडिकेटर्स देखे, बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए, रेलवे का जो एग्जाम था उसमें बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया, फिर धांधली भी हुई। तो ये जो सरकार का जो पहले जो आइडिया ऑफ रिक्वायरमेंट, जो इनको स्केल ऑफ प्रॉब्लम जो है, वो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं छूट गई है। 1.2 मिलियन जॉब्स, 12 लाख नौकरियां एक साल नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए इन्होंने इस बजट में प्रॉमिस किया, विच इज अराउंड 60 लाख जॉब्स। लेकिन हर साल ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, पीपल हु आर अटेन द एज ऑफ वर्किंग, जो कि जॉब मार्केट हिट करते हैं इंडिया में, दैट्स अराउंड 5 मिलियन, 50 लाख लोग। और उसके अलावा आपके ऑलरेडी लगभग 30-40 लाख लोग बेरोजगार हैं, ज्यादा ही होंगे, कम नहीं। उसके अलावा देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टूबा विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। जब पैंडेमिक ने इनिशियली हिट किया, lot of people from industries and service sector working in urban centers and semi-urban centers, they went back to agriculture, right? So there was a very kind of strange data point that came into existence कि agriculture में labor force increase हो गया, which is like going back to primitive economy. Normally जब economy advance होती है तो agriculture से industry में आती है, industry में services में आती है, जो इनकी skill और education increase होती है, they go into more formal sector, मोर दिस काइंड ऑफ ए सेक्टर। लेकिन पैंडेमिक की वजह से लोग वापस चले गए। अब वो वापस चले गए हुए लोग, ऑब्वियसली दे विल बी अटेनिंग एजुकेशन एंड ऑल, बोथ लॉट ऑफ देम, एंड न्यू विल बी अर्निंग। इट्स नॉट जस्ट 5 मिलियन स्टूडेंट्स एंड लाइक 30 मिलियन जो ऑलरेडी इसमें है, 3 करोड़ के करीब जो थे, देयर विल बी पीपल फ्रॉम फार्म सेक्टर कमिंग बैक टू दिस। सो ये लगभग आपका जो 1.2 मिलियन, 12 लाख की जो नौकरी प्रॉमिस कर रहे हो, और जहां से आपको लगभग 1-1.5 करोड़ के लोगों की रिक्वायरमेंट, ये मिसमैच है। सो देयर इज अ कंप्लीट मिसमैच बिटवीन व्हाट इज प्रॉमिस्ड एंड व्हाट इज नॉट। इसकी वजह से, जैसे कि मैंने कहा, जब जॉब्स नहीं होते हैं, सो व्हाट हैपेंस, अ लॉट ऑफ पीपल गो इनटू पॉवर्टी, बिकॉज हाउस होल्ड्स की इनकम होती है, नंबर ऑफ पीपल विच आर वर्किंग, उसकी वजह से। सो दैट थिंग इज entire India can be seen through a lot of indicators. For example, यही लोग जब कमाते हैं, they go out to buy stuff. That is how demand gets created. आपकी डिमांड बहुत slump हुई है just because people are not earning. So same चीज replicate at a very aggressive scale J&K में हो रही है, because a lot of people have lost jobs and they don't have money, and you don't see markets buzzing even if it's some festivity or marriage season होता है, you don't see that much of demand in the market. So सरकार का जो ये एम्बिशन है कि आप केपेक्स के थ्रू, जो उन्होंने 35% इंक्रीज किया रोड्स एंड ब्रिजेस बनाने के लिए, और रेलवेज एंड ऑल, इसके 7 इंजन है, उसके थ्रू जॉब क्रिएट करना, इतने सारे जॉब। मैं आपको एक और डेटा बताऊंगा। जब इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था फ्रॉम 2000 टू 2012, उस दौरान इंडिया की एवरेज जॉब क्रिएशन पर ईयर वाज 75 लाख। 75 लाख नॉन फार्म जॉब्स की बात कर रहा हूँ। दैट इज व्हेन इंडिया वाज ग्रोइंग, क्रूजिंग लाइक एनीथिंग। उसके बाद से दिस हैज ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली। आई थिंक लास्ट ईयर, 2014 से अभी तक पर ईयर इंडिया इज क्रिएटिंग ओनली 29 लाख जॉब्स। सो इस वजह से जो जॉब क्रिएशन और जॉब सप्लाई और डिमांड में जो फर्क आ रही है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोग बढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, एंड बजट हैज नॉट एड्रेस दैट, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये बहुत कोर प्रॉब्लम थी इंडिया की, अभी की जबरदस्त प्रॉब्लम थी, इसको एड्रेस नहीं किया गया है, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हमने बात की कि जो क्राइसिस थी वो
address नहीं हुई है, there has been no redressal as far as that is concerned. अभी जो peculiar रहा है पिछले कुछ सालों में, it has been the pandemic, right? And the economic crisis, it's been there pan world, right? तो और अभी 2021 में भी सेकेंड वेव आई और उसमें हमें लगा कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना poorly कंस्ट्रक्टेड है. डू यू थिंक जो क्राइसिस थी कोविड पेंडेमिक की वजह से और जो हेल्थ केयर, हैज द हेल्थ केयर गॉटन इट्स ड्यू एज वेल, हैज इट गॉटन इट्स शेयर? इंडिया ने एक नया पॉलिसी बनाई 2017 में, नेशनल हेल्थ पॉलिसी. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था. एंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने एक टारगेट दिया गवर्नमेंट को कि आपका जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट कैपेक्स वगैरह में या इट्स वेरी पुअर. एज अ रिजल्ट a lot of people are not able to access health care, and this is kind of very important that you increase the amount of money spent on healthcare to GDP का रेशियो जो 2.5% of your GDP should be spent on healthcare. तो ठीक है, इन्होंने अडॉप्ट कर ली, लेकिन अभी तक 5 साल हो गए उस पॉलिसी को, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ. जो लास्ट बजट, ये अभी वाला बजट भी, इट्स स्टिल 1.3%. तो अभी भी जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट का स्कोप ऑन हेल्थ केयर है, इट्स आई थिंक द लोवेस्ट इन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज जो भी है, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसमें से सबसे कम स्पेंडिंग जो हेल्थ केयर विद परसेंटेज ऑफ जीडीपी, दैट इज इंडिया. दैट्स वन. दूसरी चीज जो है कि नॉर्मली जो हेल्थ केयर होता है, इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट, यूनियन का नहीं होता, स्टेट सब्जेक्ट. लेकिन 80% जो 85% जो स्टेट्स का एक्सपेंडिचर होता है हेल्थ पे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वो क्या मतलब होता है? मतलब वो डॉक्टरों की तनख्वाहें, पैरामेडिक्स की तनख्वाहें, वो जो सप्लाईज होती है, दवाई वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब चीजें करने में लगता है. दे आर नॉट एबल टू स्पेयर अ लॉट ऑफ मनी टू क्रिएट न्यू फैसिलिटीज, like creating new tertiary care hospitals. For example, you must have seen in J&K, there's still that SORA, there is still that SMHS, and you have still that, those hospitals. You don't have hospitals coming every 5 years or something. So normally, this is where union government chips in. They come up with capital expenditure. They come up with big hospitals, like AIMS वगैरह करके जो है उन्होंने announce किया है, पता नहीं कब बनेगा. तो that is where healthcare has been very disappointing. And that's and importantly, like I said in the beginning, we are still in the middle of the pandemic. It's not gone yet. There's no quick fix solution. We still don't have a working vaccine for it. And उस दौरान भी आप अपना हेल्थ केयर बजट जो लास्ट ईयर था उसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन उससे ज्यादा है. एज अ रिजल्ट ये काइंड ऑफ सेम है जो लास्ट ईयर वाला, विच वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग हेल्थ केयर के हिसाब से. एंड गवर्नमेंट इज लाइक देव काइंड ऑफ जो अप्रोच लगा, जो बातों से, जो उनकी स्पीच का अप्रोच लगा था, एज ए पैंडेमिक चला गया एंड नाउ वी नीड टू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग एल्स. बट पैंडेमिक चला नहीं गया. अभी भी पीपल्स लाइफ, jobs have been devastated, economies, work life has been devastated. People are not still able to, private investment नहीं हो रही है. कोई रेस्टोरेंट वाला अभी एक्सपेंशन का सोच नहीं रहा है, राइट? या फैक्ट्री वाला कोई एक्सपेंशन का नहीं सोच रहा है, नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, बिकॉज एक पैंडेमिक की तलवार अभी भी लटक रही है. लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से तलवार हट गई है और ये एक्सपेंडिचर जो कम हो रहा है, विच इज अगेन नॉट अ वेरी गुड इंडिकेटर. मैं एक दो पॉजिटिव्स भी बोलूंगा बजट के बारे में, विच इज आई थिंक इम्पोर्टेंट. We have to be very balanced. One important thing which I liked about the budget is there has been an increase in investment in education sector. Education sector में एक substantial jump हुआ है. लेकिन हालांकि बहुत सारी 12 लाख वैकेंसी जो टीचर्स की है अभी भी पेंडिंग है अक्रॉस इंडिया, विच इज स्टिल नॉट बीइंग कवर्ड. लेकिन जो एलोकेशंस है लास्ट ईयर के बजट के मुकाबले में इस साल की एलोकेशंस है वो काफी ज्यादा है. और उस हिसाब से मेरे ख्याल में द गवर्नमेंट्स अप्रोच टुवर्ड्स other things like e-commerce, IT, telecom, उसके towards जो allocations दिन ब दिन increase हो रही है. E-governance के towards increase हो रही है. Sorry, e-commerce नहीं था, that was e-governance, which is a very bright side. The noteworthy thing that has come up is, the unexpected taxation on cryptocurrency, and it has gotten everybody to question कि उसका status क्या है. So, cryptocurrency legal or not? Whenever the government taxes something, which means it has accepted it. For example, lotteries or gambling is allowed to operate in India, but they are taxed heavily. So, cryptocurrencies के साथ भी ऐसा ही सीन है. For example, you have liquor or you have smoking and all.
they are allowed to sell these products, but government looks towards them as sin products and they are taxed heavily as a revenue stream. तो अगर क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, they have been very careful in saying crypto assets, and they have also included a lot of other things into it, and NFTs and all. तो सरकार का टैक्स लगाना इज वन ऑफ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ लीगैलिटी ऑफ एन एसेट, which is something to be very happy about for the crypto investors. लेकिन इसमें बहुत सी एम्बिग्विटी है. फॉर एग्जांपल, उन्हें डिजिटल फॉर्म के एसेट्स की बात किया है. गोल्ड ETF इज ऑल्सो डिजिटल फॉर्म ऑफ एसेट. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड हम डिजिटली जब खरीदते हैं, क्या उस पर भी 30% लगेगा? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी क्लियर नहीं है. लेकिन क्रिप्टो करेंसीज का जहां तक सवाल आता है, ये उनके लिए एक गुड न्यूज है, बिकॉज जो खतरा था कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस बैन हो जाएंगे, क्रिप्टो करेंसीज बैन हो जाएंगी, बट since it's a part of mainstream, very important policy document, fiscal policy of the government, and it's looking towards it as a revenue stream, which means it is partially legalized, and it's a part of now the fiscal entire thing. तो मेरे ख्याल में अच्छा, हाँ, देयर हैज बीन डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज इट्स हेवीली टैक्स्ड. अभी कुछ कमाया नहीं, अभी शहर बसा नहीं तो लुटेरे आ गए. But the thing is, it's better than not getting identified by the government or recognized by the government. Paying heavy taxes is better than that. Capital expenditure, which has increased by about 35%. What do you think does that do to the health of the economy? So that is one of the very bright spots in the entire budget. It's a substantial jump in the capital expenditure. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर से होगा क्या और इससे इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा? पहली चीज, डिस्पाइट हैविंग प्रॉफिट्स, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाय बिग कॉर्पोरेट्स इज हेल्ड बैक because of ambiguities, because of uncertainty and all. But the moment government starts pouring in money in the system, and with this much of scale, private investment also gets an impetus. It's like they also jump in. So this is very important. और इसमें कोर सेक्टर ज्यादा जंप करेंगे. जैसे कि हमने देखा, जो ही ये अनाउंसमेंट हुई, जो स्टील बेचने वाली कंपनियां या सीमेंट बेचने वाली कंपनियां, उनके स्टॉक्स इंक्रीज होने लगे. सो ये बड़े कोर सेक्टर है, एंड ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं. कंस्ट्रक्शन, इसमें जो बहुत बड़ा इसका हिस्सा है 20,000 करोड़, वो दिया जाएगा टू क्रिएट 25,000 किलोमीटर्स ऑफ हाईवेज. सो उसमें बहुत सारा जो फार्म सेक्टर से लोग हैं वो एंगेज होने की पॉसिबिलिटी है. एक इन्वेस्टमेंट सरकार का इतना बड़ा पैसा आएगा विच विल गो इनटू प्राइवेट हैंड्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉर्पोरेट्स, देन ट्रिकल डाउन टू लेबर क्लास एंड अदर स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड. सो ये एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज थी इंडिया के लिए, ग्रोथ के लिए. और इसमें मेरे ख्याल में J&K also needs to kind of be aggressive in demanding its share. Why? Because J&K is a landlocked place. हमारा एक राबता जो भी rest of the world से है, that is through Jawahar Tunnel, right? So in case we have ये बहुत बड़ा जो हिंदुस्तान की सरकार कर रही है खर्चा, इसमें से कुछ खर्चा हमारे रोड्स, हमारे रेलवेज और हमारे ब्रिजेस पे लगाया जाए, तो हमारी इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ी चीज होगी. बिकॉज हमारा मार्केट लिंकेजेस बढ़ेंगी, हमारा रॉ मटेरियल एक्सेस बढ़ेगा, और एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी होने की वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो अभी तक हेल्ड बैक है, वो बहुत ज्यादा खुल सकती है. तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लिए तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत बड़ी चीज है. इतना बड़ा खर्चा सरकार कर रही है और इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी पुल इन होगा. लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार को भी मेरे ख्याल में इस चीज को लेके एक अग्रेसिव स्टैंड लेना चाहिए विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि भाई हमारा भी कुछ इसमें हिस्सा अच्छा खासा रखो, ताकि हमको भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है हमारी इकोनॉमी को फायदा है. Our conversation, we talked about MSME. So what do you have to say about the collapsing MSMEs? Yeah, MSMEs जो हिंदुस्तान के बैकबोन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 6-7 करोड़ लोग वहां पे काम करते हैं हिंदुस्तान के. एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का इनका पोटेंशियल है. नॉर्मली अगर हम ट्रेडिशनल पाथ देखें इकोनॉमी का, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, उनका क्या होता है, पहले अग्रेरियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा होती है और पैरेलली थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज ग्रो होती है, फिर सर्विसेज ग्रो होती है. सर्विसेज के पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वो ग्रो एब्जॉर्ब करती है. सो दिस इज हाउ इकोनॉमीज ग्रो, पैरेलली होती है. फिर एग्रीकल्चर में जो लोग वाबस्ता है वो कम होते हैं, श्रिंक होते जा रहे हैं. प्रोडक्शन इंक्रीज होती है विद मशीन्स एंड अदर थिंग्स. इंडस्ट्रीज वाला बहुत बड़ा एब्जॉर्ब करता है और फिनिश्ड गुड्स एंड एक्सपोर्ट में हेल्प करता है और अपनी डोमेस्टिक डिमांड में हेल्प करता है. फिर सर्विसेज हो गया. इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है, और J&K के साथ भी प्रॉब्लम ये है, कि हमने जो ट्रांजिशन फ्रॉम
एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज है, वो वाला स्टेप जो है बहुत स्किप काइंड ऑफ किया, मतलब बहुत कम है। हम डायरेक्टली यहाँ वाले लोग जो है डायरेक्टली एग्रीकल्चर से सर्विसेज में आ गए। सो जो बीच वाला जो अंडर डेवलप्ड सेक्टर रहा, वो अच्छी तरीके से फल फूल नहीं रहा है। जैसे हमारी फैक्ट्रीज ले लें, JNK की ले लें, हम देखें कि उसके साथ अभी भी सिर्फ आपका 45 लाख का वर्क फोर्स है JNK में, अभी सिर्फ 1.5 लाख लोग उसमें एब्जॉर्ब है, उसमें से भी 80% माइग्रेंट है। चलो वो दीगर सवाल है, वो कौन किस टाइप के लोग हैं, लेकिन 1.5 लाख लोग एब्जॉर्ब हो रहे हैं अभी उसमें। सो दैट इज वेरी स्मॉल, but the capacity of industries to absorb human resources is quite large. अब इसमें क्या, लास्ट ईयर हमने देखा कि एक स्कीम निकाली गई थी पैंडेमिक के दौरान, दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन क्रेडिट, मतलब बैंक लोन दिया गया विदाउट मॉर्गेज, उसमें मॉरिटोरियम बढ़ाया गया, उसमें इंटरेस्ट रेट्स को थोड़ा बहुत टिंकर किया गया MSMEs को सपोर्ट देने के लिए। वो स्कीम चली, उसमें क्रेडिट भी उठा, थोड़ा बेल आउट भी हो गए, जो ये MSMEs बहुत सिक थे वो, बिकॉज उनकी जो मेनलैंड इंडिया की प्रॉब्लम्स जो थी वो डिफरेंट थी कंपेयर टू JNK में जो स्पान ऑफ लॉकडाउन था वो क्वाइट लार्ज था। उसके हमारे लिए वो क्रेडिट चला नहीं, because they were already indebted to banks and now government came with more credit through banks. They had no ability to repay that loan. As a result, आपने देखा होगा repeatedly industries, Federation Commerce, Industry Kashmir, repeatedly they come on newspapers and they say we are going to wind up, we are going to collapse, because उनका डेट प्रोफाइल काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, यहाँ से मार्केट खुला नहीं है, जिसकी वजह से इनकम फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये बजट क्या करता है, बजट में भी इट शुड हैव कम अप विद सम काइंड ऑफ रिलीफ, मे बी जैसे बहुत सारे रिलीफ, GST सपोर्ट या रेंटल सपोर्ट या इलेक्ट्रिसिटी वेवर, छोटे छोटे इंसेंटिव, जिसकी वजह से एक जो फैक्ट्री वाला है उसकी जेब में जो पैसा है वो बचे, ज्यादा खर्च ना हो, कम हो, जो सरकार के हथियार है वो इस्तेमाल करके वो फैक्ट्री वाले को थोड़ी राहत दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है MSME, तो मेरे ख्याल में वो हथियार भी सरकार ने एक बड़े इलेक्शन के लिए रखा है, 2024 के लिए रखा है, मे बी तब MSME एंड मिडिल क्लास प्राइम फोकस हो। लेकिन अभी सरकार ने ज्यादा टिंकरिंग नहीं की है क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है। लास्ट ईयर उन्होंने कहा था कि हम डाइवर्स्ट करेंगे, इतना सारा पैसा रेज करेंगे गवर्नमेंट कंपनियां बेच के, लेकिन उसका आधा मतलब 1.78 लाख करोड़ इनको करना था रेज थ्रू डाइवेस्टमेंट, अभी तक खाली 75,000 करोड़, विच मीन्स 1 लाख करोड़ अभी शॉर्टफॉल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो इनके पास रिसोर्सेज है नहीं। और ये जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज तूबा ये है कि जो इन्होंने ये केपेक्स बढ़ा है, ये पैसे पता है कहाँ से आ रहे हैं? ये पैसे आपके और मेरे जेब से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो टैक्सेस हम पेट्रोलियम पे देते हैं, वो डीजल पे देते हैं, उसकी जो आमदनी आ रही है सरकार की बहुत ज्यादा है, क्योंकि बाकी आमदनियां कम हो गई है, डायरेक्ट टैक्सेस कम हो गए क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स उन्होंने सितंबर 2019 में कम किया था। तो ये जो फ्यूल और जिसका एक्साइज वगैरह से पैसा आ रहा है, ये वो केपेक्स में लगा रहे हैं। तो अब अगर जैसे MG नरेगा से थोड़ा कम किया, सब्सिडी कम किया, ये कम किया, वो ये केपेक्स में लगा रहे हैं। अब इनके पास उतने रिसोर्सेज है नहीं कि आप जी इनकम टैक्स भी कम कर दो, आप MSMEs को भी दे दो। वो इन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा नीचे रखा है क्योंकि अभी जो इलेक्शन में टाइम है, सो मे बी पॉपुलिस्ट डिसीजंस दे विल कम मे बी इन अ कपल ऑफ इयर्स। Overall, there have been mixed reviews about the union budget. Some have called it underwhelming. There have been others who've called it surprising, and some have called it ambitious as well. Now, you started with saying that it is more or less status quoist and might move on to become populist by 2024. Now, who do you think does the union budget target or favor the most? This budget, the majority of the meat of the budget goes towards infrastructure, and as a result, the corporates directly dealing with the government in terms of developing these highways, steel companies, cement companies, they are going to benefit a lot. They will, like I said, you must have seen the way stock market of these stocks of these companies started behaving the moment budget came out. So that these companies are going to directly get benefited. Of course, there will be spillover benefits to the economy in terms of job creation and other things, the capacity increasing of the economy. But the another thing which is also important is government did not fiddle with the corporate tax, which was expected kind of कि उनका tax बढ़ाया जाएगा because maybe that money will be used to for social welfare and other things. तो again corporate sector will again be happy because उनका जो है कॉर्पोरेट टैक्स नहीं बढ़ाया गया, जो उनको ड्रास्टिकली रिड्यूस किया गया था सितंबर 2019 में।
थर्ड, सुपर रिच को टैक्स कोई ऐसा नहीं बढ़ाया गया, कोई सरचार्ज या सुपर टैक्स नहीं बढ़ाया गया, सो दे विल अगेन बी हैप्पी. सो मेरे ख्याल में एक बहुत स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल विच हैव बिग कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज विच हैव लॉट ऑफ वेल्थ, विच हैव ह्यूज इनकम, दे विल बी हैप्पी विद द बजट. और रही बात जो लोग निचले तबके के हैं, वो आर डायरेक्टली रिलेटेड विद फार्म, who are related with households. And there are two more things which I kind of missed, which are like really good for common people. One is there is this housing, Pradhan Mantri Awas Yojana, I think the name of it, Pradhan Mantri Housing Scheme for low income groups. The government has put a substantial amount of money in that, 48,000 crore. I think that is one good thing for the lower strata of the people. And tap water, access to some Jal Yojana or something. उसका भी एलोकेशंस बढ़ाया गया है. These two things are very important, which are like for the lower strata of the society, besides the corporate thing. But yes, unemployment has not been addressed. इन्फ्लेशन के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला गया, हालांकि दैट्स अ मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई का डोमेन है, बट सरकार को ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जिसकी वजह से इकोनॉमी और कॉमन मैन सफर हो रहा है, उसके बारे में बजट में एक लफ्ज नहीं बोला गया इन्फ्लेशन के बारे में. दैट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग. जॉबलेसनेस के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ. इसी तरीके से आपका हेल्थ केयर हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग. I think that's about it for today. I think जो हमारे viewers हैं, they might have gotten a fair enough clue about the union budget in very simple words. That is the thing about EJ. He explains everything in simple words. And you can, of course, follow his column on Kashmir Observer. It's called Economy Central. He writes about, the economics and everything in Kashmir. So follow him there. And thank you so much, EJ, for joining us again. Thank you so much, Tulva. Always nice talking to you. Thank you. Thank you. Thank you, everybody, for watching. Allah Hafiz.